जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का आगाज हम करते हैं। आज का सेशन थोड़ी सी मैं ब्रीफ दे दूं कि फाउंडर्स एज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम पाकिस्तान के स्टार्टअप या स्टार्टअप से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रोफेशनल लोग या एंटरप्रेन्योर जो इन्हीं फील्ड से वाबस्ता है उनको हम ट्रेन करते हैं। पूरे पाकिस्तान से एंथुसियास्ट को हमने इकट्ठे किया है और यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स, चाहे वो बीआईसी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर से है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से है या इसी टॉपिक से किसी भी तरीके से वाबस्ता है, तो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा है। और ये प्रोग्राम 15 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है और ये फाउंडर्स एज प्रोग्राम इस कोहोर्ट का जो है ये आज छठा प्रोग्राम है, छठा ट्रेनिंग है। नंबर 6 ट्रेनिंग आज का विद द टॉपिक ऑफ यूआई एंड यूएक्स डिजाइन। और इस कोहोर्ट के अंदर जो पिछला कोहोर्ट हुआ इसमें हमने कुछ टॉपिक सेट किए हैं, उसको मोर मॉडिफाई किया है, रिफाइन किया है। आज के सेशन के हवाले से ये है कि हमारा आज का जो इज़हार, सेशन है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब बाकी लोगों को? जी मुझे तो आ रही है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। 1 second, I just disconnected my earbuds. Okay, let me plug in my earbuds. ठीक है। हालांकि आपकी आवाज, जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? now I can hear you. Yes. जी, अगर कनेक्शन का प्रॉब्लम है तो आप अपना वीडियो को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। जी जी, sure. तो आज का जो हमारा इस यूएक्स एंड यूआई डिजाइन के लिए रिस्पेक्टेड मेंटोर है वो है हलार आजाद साहब। ही इज energetic young entrepreneur. He is a UI and UX design focused on the user-centric digital solution. Product designer at Ors Technologies, expert in Figma, passionate about the usability and clean interface design. He is also an active mentor and contribute in the design community. So I am leaving the floor to respected Halar sir. He will also introduce himself. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Izhar. That was quite an introduction. So, am I audible to everyone? Just if you could confirm, Izhar. Okay, perfect. So, my name is Halar Azad, and I'm the founder and CEO of Mixiel. Mixiel is a virtual reality company based in Hyderabad. We have been operating for the last 4 years. We started as a two twin brother team. I have a twin brother who is literally my clone. He was an expert in 3D modeling and technical art. So we found this as a perfect opportunity to start working together. So we started freelancing initially, but then we have been working through Mixiel. We launched Mixiel, and then we have delivered over 100 small, medium, and large scale virtual reality projects. We also have our own products, including the Final Overs, which is a globally popular VR cricket game. It's published on the MetaQuest platform, and we are selling it as a paid game there. It is one of the most reputable games. It is one of the most engaging games on the store available today. But it was, interestingly, it was also the first ever game in standalone VR. So we were very excited to be the first one to launch on Quest. At the time, there was no game on standalone VR. उससे पहले सिर्फ PC VR के लिए बनी थी, because ट्रैकिंग के मसले होते थे। तो जब स्टैंडअलोन आया तो उस पर कोई भी गेम नहीं थी। तो फाइनल ओवर्स वाज द फर्स्ट वन दैट वी बिल्ट फॉर इट। उसके अलावा वी हैव बिल्ट मेडिकल ट्रेनिंग एप्लीकेशंस और आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन वॉकथ्रूज। सो इट वाज ऑनर फॉर मी दैट एस्पायर पाकिस्तान ने मुझे इनवाइट किया यूएक्स के बारे में टिप्स शेयर करने के लिए। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद जो है बहुत experienced designer नहीं हूँ, but I'm a product manager, I'm a product owner. I have been leading virtual reality products, or most of the UX is driven by the directions that I set for the products. तो उसके बेसिस पे और जो मेरी एक यूजर जर्नी है, जो प्रोडक्ट जर्नी है, उसके बेसिस पे जितनी भी मेरी लर्निंग्स हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। सो दिस इज मोर अबाउट माय इनसाइट्स, माय लेसन्स दैट आई हैव लर्नड थ्रू आउट द इयर्स, and not about the
standard curriculum of UI UX. So with that, let's just get right into it, and I'm happy to answer any questions that you might have in between, and then of course we can do a whole Q&A session at the end as well. So let's start with the basics. Actually, many people still confuse UI and UX, so I just want to make it clear. UI is the look, buttons, colors, menus, and UX is the feel. Is it easy? Is it difficult? जब आपकी जो ऐप है या गेम है, यूजर खेलने के बाद क्या फील करता है? वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है या खुश फील करता है? उसको समझ आ जाती है, सारी चीजें नहीं आती, तो जो फील है उसको हम UX बोलते हैं, यूजर एक्सपीरियंस। बाकी जो भी उसको दिख रहा होता है, जिन बटन्स के जरिए उसके साथ इंटरेक्ट करता है, ऑफ कोर्स वो होता है UI, यूजर इंटरफेस। सो बेसिकली द पॉइंट इज, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैंने काफी मर्तबा ऐसे गेम्स चलाए हैं, ऑफ कोर्स ऐसे एप्स भी चलाए हैं, जिनमें चलाने के बाद मुझे समझ नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली मैंने कुछ VR के गेम्स चलाए थे, तो जैसे ही वो खोले मैंने, तो उसमें वो अकाउंट मांगना शुरू कर दिया उन्होंने कि आप यूजर नेम लिखो और पासवर्ड लिखो। तो सबसे पहले तो ये कि VR में टाइपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, आप लेटर बाय लेटर ऐसे पॉइंट ट्रिगर करते हो। और दूसरा है कि ऑफ कोर्स मेरा कोई अकाउंट नहीं बना हुआ था, तो वहां पे कोई तरीका भी नहीं लिखा हुआ था कि कैसे अकाउंट बनेगा, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दैट गेम। लेकिन अपेरेंटली मैंने वो गेम बंद कर दिया, और हमेशा के लिए बंद कर दिया, बिकॉज इट वाज बैड UX। ये यूजर एक्सपीरियंस is one example of a very bad user experience. So the mindset that I want to set today is that as a startup, your job is not to impress with the complexity. Your job is to make sure it actually works for the user. So आप जो भी बनाओ, बहुत simple UI हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन it has to be functional. बहुत ही, चाहे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज करो या बहुत ही सिंपल फीचर है, अगर वो काम नहीं करता तो कितना भी आप UI कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, UX आपका खराब ही रहेगा। सो गुड UX इज लाइक अ गुड कस्टमर सर्विस। people may not notice it when it's good, because अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो वो फ्लो में एडजस्ट हो जाते हैं, वो फ्लो में उसको चलाते रहते हैं, एंड समटाइम्स वी फॉरगेट, हम इतने ग्रेटफुल नहीं होते। तो यूजर्स अगर आपकी प्रोडक्ट चला रहे हैं और आप वो नोट नहीं कर रहे चीजों को, इश्यूज को नोट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि UX आपका अच्छा है। बट द ट्रूथ इज दैट दे इंस्टेंटली नोटिस व्हेन इट्स बैड। अगर बुरा UX है तो वो ऐसे पता चल जाता है। सो फॉर योर MVP, द गोल दैट वी वांट टू सेट टुडे इज दैट कीप इट सिंपल एंड मेक इट वर्क। तो ये सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए MVP की जहां तक बात है। So another thing that I wanted to talk about is के इस UX की आखिर importance क्या है? So the thing is that your MVP is your first impression. If users can't understand what it does or how to use it, then they will definitely leave. I've seen this many times for many apps, including in VR, non-VR, Android, iOS, any kinds of apps, including even on websites, खास तौर पे government websites, unfortunately. You spend months building something, but its UX is weak, and then the problem is that you will never get feedback. अब ये मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूँ कि अच्छा UX जो है ना, वो इसलिए भी बनाना जरूरी है बिकॉज आपको फीडबैक चाहिए। There's a difference between bad UX, good UX and great UX. जो बैड UX है ना, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑलवेज मेक ग्रेट UX। मोर इम्पोर्टेंटली फॉर न्यू एप्लीकेशंस, चाहे आप VR में बना रहे हो या मोबाइल में बना रहे हो, अगर बेसिकली अगर आप कोई भी ऐप बनाते हो तो उसमें ग्रेट UX बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है फीडबैक। अब फीडबैक जाहिर सी बात है कब मिलेगा? जब आप बना लोगे MVP, जब आप
कोई एक इनिशियल प्लेबल प्रोडक्ट बना लोगे और उसको लॉन्च करोगे, जब यूजर्स चलाएंगे तब फीडबैक देंगे, राइट? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फीडबैक कब देंगे यूजर्स। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि मैंने एक ऐप चलाई, शुरू से ही गेम चलाई, तो उसमें शुरू से ही उन्होंने अकाउंट मांगा, तो मेरे पास अकाउंट तो नहीं था, वहां पे कोई तरीका भी नहीं था कि कहाँ पे लिखना है। और एक दो ऐसी ऐप चलाई है मैंने जहाँ पे अकाउंट का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन अब ये भी एक बहुत ही टेरेबल यूएक्स है कि आप या तो आप पहले ही उधर स्टोर पे लिख दो कि भाई ये गेम चलाने के लिए आपको अकाउंट चाहिए होगा, तो पहले जाके आप अकाउंट क्रिएट करो। अब यूजर्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं, वेट करते हैं, उसके बाद हेडसेट पहनते हैं अपने फेस पे, गेम चलाते हैं, और उसको आप बोलते हो कि नहीं भाई आप इसमें एंटर नहीं हो सकते। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि कम से कम आपका जो बेसिक वर्जन है वो आप बगैर किसी अकाउंट को एंटर करके वो उसको चलाने दें। बाकी जो मेजर फीचर्स हैं वो आप उनको बोलेंगे, अगर आपने फुल एक्सेस करना है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो ये बेहतर यूएक्स है। तो वापस आते हैं फीडबैक की बात पे। एक बात ये समझ लें आप कि फीडबैक इज मैंडेटरी, ठीक है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है आज आज तक, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें भी दिखाऊंगा अभी जो हमारे गेम के साथ ने हमने की है फीडबैक के लिहाज से। तो देखें, फीडबैक के बगैर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा फीचर आपका काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, और कौन सा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल। बिकॉज यू माइट बिल्ड डजन्स ऑफ फीचर्स लेकिन योर यूजर्स वुडंट इवन नोटिस देम, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीडबैक से ही पता चलता है। अच्छा यूएक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपका यूएक्स खराब होगा तो यूजर्स ऐसे चले जाएंगे, ठीक है, वो रुकेंगे नहीं, इतना भी नहीं रुकेंगे कि वो आपको थोड़ा बहुत फीडबैक दे सकें, ठीक है। अब आप खुद ही सोचे ना कि अगर प्रोडक्ट आपकी इतनी बुरी है, जो यूजर्स चला ही नहीं सकते, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो why would they stick around, why would they spend their valuable time to provide you feedback? तो ऑफ कोर्स आपने इंटरनल टेस्टिंग करनी है, आपने अल्फा टेस्टिंग करनी है, आपने बीटा टेस्टिंग करनी है, लेकिन गुड इनफ यूएक्स आपने जरूर बनाना है, ताकि कम से कम वो आसान लफ्जों में अगर मैं बोलूं कि वो कम से कम सहने लायक हो, ठीक है। अगर सहने लायक भी नहीं है, काम भी नहीं कर रही चीजें, तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। कोई भी प्रोडक्ट दुनिया में, चाहे आप चैट जीपीटी को ले लें, गूगल को ले लें, हमारी अपनी गेम है द फाइनल ओवर्स, किसी भी प्रोडक्ट का नाम लें, वो फीडबैक के बगैर इट्स एब्सोल्युटली रबिश, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। रिसेंटली आई एम नॉट श्योर कि मुझे इसका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। हमारे एक इवेंट में जहाँ पे मैं भी पार्टिसिपेट किया था दुबई में, तो वहाँ पे वो भी थे और उन्होंने पिच किया वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने 100,000 वहाँ पे विन भी किए, जिसमें से 50,000 फाइनेंसिंग थी और 50,000 जो है वो ग्रांट था बाकायदा। तो ऑफ कोर्स आई वाज सो हैप्पी बिकॉज वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट थी। लेकिन कुछ महीने के बाद, तकरीबन 5-6 महीने के बाद, आई गोट टू एक्चुअली यूज दिस प्रोडक्ट। हमारी एक बाकायदा प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हुई और ये एक फाइनेंस की प्रोडक्ट थी, अकाउंटिंग की, तो हमने वो अपने प्रोडक्ट में यूज करनी थी, यानी अपनी कंपनी में यूज करनी थी। सो जब मैंने उसको स्टार्ट किया यूज करना, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो अंदर की कहानी तो बहुत ही डिफरेंट है। तो उसमें फीचर्स भी जितने थे वो भी इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने उनको काफी मर्तबा फीडबैक दिया और ऑफ कोर्स सम फीडबैक दे टुक इट वेरी पॉजिटिवली और उन्होंने वो पास ऑन किया डेवलपर टीम को। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने इस एक्सपीरियंस से सीखी वो ये है कि सिर्फ फीडबैक लेना काफी नहीं होता। अगर आपने जो है ना, अगर आपके सर पे भूत सवार है कि आप मार्क जगरबर्ग की तरह काम करोगे या इलॉन मस्क की तरह काम करोगे, तो आप कभी भी प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आपने काम करना है एज अ सिंपल एंटरप्रेन्योर, सिंपल फाउंडर, जिनका काम क्या होता है, प्रोडक्ट बनाना। तो जैसे मैं एज अ यूजर आपको फीडबैक दे रहा हूँ ना, अगर वो फीडबैक इंप्लीमेंट करने में, अगर ऑफ कोर्स सिर्फ एक बंदे को खुश नहीं करना, ऐसा फीडबैक, ऐसे फीडबैक पे फोकस करना है जो कि जनरली आपके यूजर्स को इम्पैक्ट करता है।
तो अगर मैं आपको ऐसा फीडबैक दे रहा हूँ, जैसे कोई बग है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी मैं अपनी गलतियां भी बताऊंगा आप हमारे प्रोडक्ट्स में जो अभी इशू चल रहे हैं, तो अगर उसमें आधा घंटा लगता है या 1 घंटा लगता है या 5 घंटे लगते हैं, आपके पास डेवलपर टीम है और आप जो है नए फीचर्स बनाने के ऊपर लगे हुए हैं, तो देन योर प्रोडक्ट विल नॉट बी सक्सेसफुल। योर प्रोडक्ट सक्सेसफुल को तो छोड़ो, यूजर्स यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर फीडबैक आपको मिलता है और वो आपको पता चलता है कि ये आपका जो मसला है किसी भी यूजर का, वो सारे यूजर्स को इम्पैक्ट कर सकता है या कर रहा है, तो देन योर प्रायोरिटी इज कि उसको एज सून एज आप डेवलप करके लॉन्च करें। दिस इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट बिटवीन ऑल अदर सिमिलर कंपेटिटर्स। अगर बाकियों की तरह आप जो है ढेर सारे फीचर डेवलप करते जाएंगे और यूजर्स के फीडबैक से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो भाई आई एम सॉरी, आपका प्रोडक्ट जो है वो सूनर और लेटर लोग इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो इसलिए यूजर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल अपनी गेम से फिलहाल दे देता हूं, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी रिसेंटली हमने, हमारा है क्रिकेट गेम, तो अभी रिसेंटली हमने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसमें जो ग्राउंड पे यूजर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, कीपर, फील्डर, बॉलर, कैप्टन, तो रियल लाइफ में क्रिकेट में वो आवाजें करते हैं ना, ठीक है, जो कैप्टन है वो इनकरेज करता है, शाबाश भाई शाबाश शाबाश। तो इस तरह की आवाज हमारे गेम में नहीं थे, ठीक है, सालों से हमारी गेम चल रही है लेकिन ये वाले नहीं थे। प्लान कर रहे थे हमेशा से लेकिन प्रायोरिटी में नहीं आ रही थी ये चीजें। सो फाइनली वी मैनेज टू बिल्ड दिस फीचर एंड देन मसला ये हुआ, अब ये इससे आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करना, हर कोई फीचर आप जो लॉन्च करोगे ना, जरूरी नहीं है कि आपके हर यूजर को वो पसंद आए। तो जैसे ही हमने ये फीचर लॉन्च किया, तो हम सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्ट करते रहते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं। तो हमारा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है यूके से, वो भी एक यूजर है हमारा, हमारे गेम का, तो उसका कमेंट आ गया एक वीडियो पे कि आपने ये कौन सा टेरिबल फीचर लॉन्च किया है, मुझे बहुत तंग करती हैं ये आवाजें और मैं इनको बंद नहीं कर पा रहा। तो हालांकि हमारे से गलती ये हो गई कि हमने उसको बंद करने का स्लाइडर दे दिया था, यानी वॉल्यूम स्लाइडर दे दिया था हमने कि आप इन वॉइसेस का वॉल्यूम कम कर सकते हो। लेकिन गलती ये थी कि जो मिनिमम आवाज है वो हमने 0 नहीं की थी इंटेंशनली। वी थॉट के हम एक बेयर मिनिमम आवाज उसको रखते हैं, ठीक है, और अगर आप मैक्स पे चलाते हो तो फिर वो आवाजें तेज चलेंगी, लेकिन बेयर मिनिमम पे भी वो आवाजें चलेंगी। तो ये हमारी गलती थी। इस यूजर के फीडबैक से हमने ये सीखा कि बेसिकली नॉट एवरी यूजर इज गोइंग टू एंजॉय दीज वॉइसेस। सो फिर हमने क्या किया कि फौरन जो है उसको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फिक्स था लिटरली, जहां तक डेवलपमेंट की बात है तो ये तो बहुत ही सिंपल था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, सो दिस इज व्हाट वी लर्न एंड देन इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली, एंड देन हमने इसको जो पैच है वो लॉन्च कर दिया। सो I hope this story gives you some of the insights, and now we will move on to the next slide. Okay, so जब हमने फाइनल ओवर्स बनाई अपनी VR गेम, तो जो हमारा जो उसमें एक मिशन था वो ये था कि हमने हाइपर कैजुअल गेम बनानी है, जिसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी यूजर एक्सपीरियंस में हो ही ना, ठीक है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। जब यूजर गेम में आए तो उसको सब कुछ पता चल जाए कि क्या करना है, तो बेसिकली इंट्यूटिव एक्सपीरियंस, सही है। और वीआर में क्योंकि लेजर पॉइंटर टेक से बनाते हैं यूजुअली लोग, तो काफी मुश्किल हो जाता है, आप बटन को प्रेस करते रहो वगैरह वगैरह। तो हमने काफी अपनी कंपेटिटर गेम्स भी खेली हुई थी, ठीक है, लेकिन हमने ये सोचा कि भाई हमें कंपेटिटर्स को नहीं देखना, किसी भी गेम को नहीं देखना, हमें ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाना है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। तो थैंकफुली अभी मैं अगर आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम, वरना मैं यहाँ पे ट्रेलर वगैरह चला लेता अपने गेम का, लेकिन आई एम हैप्पी टू से कि जो गेम प्ले है, जब आप स्टेडियम में जाते हो, ड्रेसिंग रूम से जब आप स्टेडियम में जाते हो, तो लिटरली आपको एक भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ 3D बैट, और जो बटन्स हैं जो आप
प्रोसीड करते हो, जो इंटरेक्ट करते हो गेम के साथ, वो सारे बटन्स आपके 3D बॉल्स बने आते हैं। जो आप बैट, अगर आपने ऐसे बैट पकड़ा हुआ है तो आप उनको हिट कर सकते हो बाकायदा, जिस तरह आप फिजिकली बॉल को हिट करते हो। तो पूरे गेम प्ले एक्सपीरियंस में आपको बटन प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स अगर आपने सेटिंग्स में जाना है, अगर आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, कोई फीचर डिसेबल करना है, कोई फीचर ऑन करना है, तब आपने जाहिर सी बात है कि बटन प्रेस करना है मेन्यू को खोलने के लिए। अदरवाइज डिफॉल्ट सेटिंग्स पे पर अगर आप खेल रहे हो तो कोई बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से हमने जो आपको मैंने अपना मोटो बताया, कीप इट सिंपल मेक इट वर्क, उसी फॉर्मूला पे हमने अपना पूरा यूजर एक्सपीरियंस बनाया। एंड मैं आपको ये चीज इत्मीनान के साथ बता सकता हूँ कि अगर अभी हमारी गेम बहुत कम्पिटिटिव है पूरी दुनिया में, हालांकि ऐसी गेम्स भी मौजूद हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं बनाने में, तो उसकी वजह सिर्फ ये हमारा यूएक्स है। हमारा यूएक्स, क्योंकि ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, हम अपने यूजर से लिटरली पूछते हैं कि आप हमारी गेम को क्यों प्रेफर करते हो बाकी गेम्स से, तो वो हमें बताते हैं कि जो सिंपलिसिटी है गेम की वो हमें बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स काफी यूजर्स ऐसे हैं जो कि दूसरी गेम्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन हमने जो अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट रखी है वो सिंपलिसिटी रखी हुई है। So anyway, this was our experience from the final overs. अच्छा, अब एक जो है और मजे की चीज हमने की, जिसको तकरीबन आई थिंक रफली 8 महीने हुए, वो ये कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि हम ज्यादा यूजर्स से फीडबैक ले सकें। मिसाल के तौर पे हमारी अपनी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, ठीक है, तो डिस्कॉर्ड में हमारे तकरीबन 450 यूजर्स थे। तो जब भी हम वहां पे पोस्ट करते थे तो जाहिर सी बात है हर कोई इतना एक्टिव नहीं होता, तो कभी 20 लोग, कभी 30 लोग, कभी इवन 10 लोग रेस्पॉन्ड करते थे, ठीक है। लेकिन हमारे जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं वो तकरीबन 2200 के करीब है, 2200। तो अब 2200 यूजर्स का जो फैसला है, या 2200 यूजर्स के लिए जो हम डेवलप कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि 10 या 20 यूजर्स के फीडबैक पे डिसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें काफी फ्रस्ट्रेट करता था, क्योंकि उसमें यूजर्स जाहिर सी बात है वही होते थे जो डिस्कॉर्ड पे होते थे। तो जो डिस्कॉर्ड पे एग्जिस्ट नहीं करते उनका हमें कभी भी फीडबैक नहीं मिलता था। तो फिर हमने बहुत टाइम लगाया एक ऐसा बैकएंड और फ्रंट एंड फीडबैक सिस्टम बनाने के लिए जो कि बहुत सीमलेस हो और इंटीग्रेटेड हो विद इन द एक्सपीरियंस। तो अभी क्या होता है कि इफ यू आर प्लेइंग अ मैच, अभी आपने 2 ओवर खेल लिए, तीन ओवर खेल लिया आपने, तो जैसे क्या होता है कि हर ओवर के बाद 3D बटन आता है गो का, यानी आप प्रोसीड करो। आपने देख लिया सारा कंफर्टेबल, उसके बाद हिट करते हो आप गो के बटन को, तो आप फिर बॉलर जो है बॉल करना शुरू करता है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर दिस, जैसे ही ओवर कंप्लीट होता है, तो हम वहां पे ओवर स्क्रीन की तरह ही सवाल दिखाते हैं, भाई क्या आप फिजिक्स से मुतमईन हैं या नहीं है, ये यूजर के पास सवाल चला गया। और उसी तरह जिस तरह वो हमारे बटन्स हैं 3D के बॉल्स हैं, उसी तरह 2 बॉल और आ जाएंगे, एक पे लिखा होगा यस, एक पे लिखा होगा नो, और आपने क्या करना है, सिर्फ बैट के साथ जो भी बटन आपको प्रेस करना है उसको हिट करना है और बाकायदा वो बॉल उड़ जाएगी, ठीक है। तो यानी फिजिकली इंटरेक्टेबल रखा हमने फीडबैक को। लकीली अगर आप इस स्लाइड पे देखो तो आपको 4 डिफरेंट फीडबैक क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पे तो हमें कम नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन तकरीबन 5000 यूजर्स का भी फीडबैक हम इसी फीडबैक सिस्टम से रिसीव कर चुके हैं। तो नाउ दिस इज द सिस्टम दैट हेल्प्स अस ड्राइव अवर डायरेक्शन। हम इसके बेसिस कोई भी डिसीजन बड़ा लेना होता है तो हम पहले यूजर का फीडबैक लेते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि अब लकीर के फकीर नहीं बनना कि जो यूजर्स आपको बोल रहे हैं बस वही करते रहना है, क्योंकि आपका विजन इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में कोई यूजर एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने एक विजन के बेसिस पे गेम बनाई, उसी के यूजर सब बन गए हैं। तो यानी हमारा विजन भी, आपका विजन भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आपको एक बैलेंस फाइंड करना है कि आपका विजन जो है वो अलाइंड हो यूजर फीडबैक के साथ। अगर वो कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक है तो ये एक आपके लिए मसला क्रिएट करेगा। So I hope this is also going to give you some insights. I would highly encourage
कि कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपने तो देखा ही होगा, चाहे चैट जीपीटी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, यू नेम इट, तो उसमें वो फीडबैक सिस्टम बनाते ही है। अगर वो मुश्किल होगा, अगर आप 3-4 सवाल पूछ रहे हो, सर्वे कर रहे हो, कोई यूजर नहीं आपको देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बहुत ही सिंपल तरीके से येस और नो किया है तो डेफिनेटली आपको काफी फीडबैक मिल सकता है। सेकेंडली ये कि दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज, मैं पर्सनली भी ना डिस्कॉर्ड पे पर्सनली यूजर्स को मैसेज कर करके उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करता था 10 मिनट की। उनको बोलता था कि मुझे आपसे बात करनी है 10 मिनट के लिए। फिर मैं इंडिविजुअल यूजर से पूछता था कि आप क्यों खेलते हो फाइनल ओवर्स, आपको क्यों अच्छी लगती है, या आपको फला फीचर क्यों बुरा लगता है, वगैरह वगैरह। जब मैंने 5, 10, 15 लोगों से बात कर ली तो उसमें से मुझे फिर, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो आजकल तो एआई टूल्स सारे मीटिंग्स की समरी निकाल के मुझे एक निचोड़ निकाल के दे देगा कि भाई सारे यूजर्स की नर्व क्या बोलती है। अच्छा, जस्ट हेड्स अप कि मेरा यूपीएस बंद होने वाला है, तो हो सकता है इज़हार में डिस्कनेक्टेड हो जाऊं, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज चल रहा है तो आई कीप इट गोइंग, राइट। सो ठीक है। या सो इसलिए जो है आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल यूजर्स के साथ भी इंटरेक्ट करें, उनके साथ आप बात करें। ओके, नाउ हमसे ये गलती होती है बेसिकली कि वी बिल्ड टू मच एंड देन वी ट्राई टू इम्प्रेस इन्वेस्टर्स, नॉट यूजर्स। हम इन्वेस्टर्स के लिए बना लेते हैं, ब्ला ब्ला फीचर्स भी डाल देते हैं, कोई हाई लेवल का डिजाइनर हायर करके फैंसी डिजाइन बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि क्लटर्ड यूआई बन जाता है, कंफ्यूजिंग फ्लोज बन जाते हैं, और यूजर रिटेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो यूजर रिटेंशन आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूजर रिटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके एमवीपी में एक से ज्यादा एक्शन है कोई, तो आई थिंक इट्स टू मच। आपका जो एमबीपी है उसमें, क्योंकि ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है ना, तो उसमें आप क्या क्या ही मतलब 10-12 फीचर्स दे दोगे। अब 2-3 ऐसे फीचर्स दे दो जो चलें, जो बहुत ही सिंपल हो, जो चलें, जो it just has to work. So my advice is that focus on the journey and do that really well and you'll stand out. अगर आपने जो यूजर की जर्नी है उस पर फोकस नहीं किया, उनकी जर्नी में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो देन आपके जो कंपेटिटर्स हैं जो बेहतर कर रहे हैं वो डेफिनेटली स्टैंड आउट कर जाएंगे। ओके, सो व्हाट्स द राइट अप्रोच? इतनी सारी हमने बातें कर ली। द फर्स्ट थिंग इज दैट यूज योर ओन प्रोडक्ट। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें इसने बहुत हेल्प किया है। हम रेगुलर बेसिस पे मैचेस करते हैं अपने, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपना 4G चला देता हूँ ताकि अगर यूपीएस बंद होता है तो मैं डिस्कनेक्ट नहीं हूँ। ओके, सो हमारे केस में ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है कि हम रेगुलरली फाइनल ओवर्स में मैचेस खेलते हैं, ठीक है। बाकायदा टीम में भी हमारी मंथली मैचेस होती हैं, 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5-5 की टीम बना के, और बहुत ही थ्रिलिंग, हमने ट्रॉफी ले रखी है इतनी बड़ी, और जो भी टीम खेलती है वो टीम ऑफ द मंथ बन जाती है। बल्कि एक प्लेयर जो है वो जो मैन ऑफ द मैच होता है वो प्लेयर ऑफ द मंथ बन जाता है। उसको हम कैश प्राइज भी देते हैं, ट्रॉफी भी उसके टेबल पे पूरा महीना पड़ी रहती है, और बहुत ही पैशनेटली सारे मेंबर्स जो हैं हमारे टीम के, वो हर वक्त खेल रहे होते हैं। हम किसी को भी मना नहीं करते, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा अगर काम ही क्रिकेट बनाना है तो भी इनकरेज के वो खेलते रहे उसको। सो बेसिकली हमारे अपने टीम मेंबर और प्लस में हम अपने भाई कजिन्स आपस में रोजाना के बेसिस पे मैचेस करते हैं। इससे हमें ये फायदा होता है क्योंकि हम एक्टिवली इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो कम से कम हमें पेन पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल हो जाती हैं बाकायदा क्लियरली। क्योंकि देखो, अगर आप प्रोडक्ट कोई एक्टिवली रोजाना चला रहे हो तो जहां पे भी आपको मुश्किल आ रही होगी वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपके काम की है ही नहीं, जो आप यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो इन सम केसेस तो जस्टिफाइबल होता है, आपके काम की हो सकता है, आप किसी और सेगमेंट के लिए बना रहे हो प्रोडक्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स people build products that are close to them, that provide at least some value to them as well. So you have to actively use your product.
Secondly, as I just mentioned कि आपको यूजर्स के साथ कॉल शेड्यूल करके उनके साथ बात करनी चाहिए. And third thing is, जैसे मैंने पहले कहा, build fast. Don't wait for perfection. Ship, learn and repeat. जितना जल्दी हो सके आप शिप करो, फीडबैक लेकर उससे सीखो और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहो. And then finally, of course, act on the feedback, but always align it with your vision. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके विजन से हटके कोई चीज आप नहीं करें. बेशक जो भी फीडबैक आपके विजन के साथ अलाइन होता है उसी को आप बिल्ड करते जाएं. ठीक है? Because not every suggestion needs to be followed, of course. And lastly, MVP is not about adding features. इस बात को आप याद रख लें. It's about removing friction. जहां पे भी मसला आ रहा है, यूजर को फ्रिक्शन आ रही है, उसको रिमूव करना है. तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा क्रिएट हो सकता है. और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि UX इज ऑनगोइंग. इट डजंट स्टॉप आफ्टर लॉन्च. It doesn't stop after updating your product for a number of times. Keep listening and keep improving. हमें 4 साल हो चुके हैं गेम लॉन्च करते हुए, अभी भी हमें ये फीडबैक सिस्टम बनाना पड़ा यूजर्स को सुनने के लिए. उसकी वजह है कि G, he has dropped. Just give us a few seconds. audible? G, you're audible now. Okay, great. हाँ, यहाँ पे लाइव बंद हो गई. So luckily I have some 4G network. Anyway, जी, आप so अपना वीडियो अगर आप भी कर देता ठीक है, नो प्रॉब्लम. जी वीडियो ऑफ ही है मेरा. जी जी ठीक. Okay, okay. So lastly, if people can use your product without thinking, then you've already won. That's the mindset that we started building Final Hours with, कि यूजर्स को ज्यादा सोचना नहीं पड़े. और उसी का मैंने आपको बताया कि उसी सिलसिले में फिर हमने बटन लेस UI बनाई ताकि आपको पॉइंट एंड ट्रिगर नहीं करना पड़े. अगर आप एडवांस यूजर हैं, अगर आपने मेन्यूज वगैरह एक्सप्लोर करने, तब आप कर सकते हो. बट इफ यू जस्ट वांट टू प्ले अ मैच, you absolutely don't need to point and trigger and press the buttons. ठीक है? अभी भी जब हम यूजर्स के हाथ में कंट्रोलर पकड़वा के उनको गेम खिलवाते हैं कभी कभी डेमोज में, तो वो हमसे पूछते हैं कौन सा बटन दबाना है. जब हम उनको बोलते हैं भाई कोई बटन नहीं दबाना, ये बैट है, आप बॉल को हिट करो, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. भाई ये जबरदस्त. क्योंकि किसी भी यूजर को आप बोलोगे भाई फलाना बटन दबाओ, फलाना बटन दबाओ, तो वो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएगा. सो anyway guys, that's the wrap from me. I'll now open the floor to questions. All right, thank you so much for sharing us a very real experience and insights from your side. Now the floor is open. Everyone, if you have any question, just raise your hand, we will take that.